Let me do a quick introduction of the speakers today. We have Mr. Vinod Bhatt, who is the fund manager of our flagship product, Asset Allocator Fund. He has been in the financial services industry for about 20 years and has worked in US with investment bankers like Credit Suisse, with organizations like Ocean Park, and has been with Aditya Birla Mutual Fund for last about 3 years now, and has been key member of the equity investment team on the knowledge part and on the fund management side as well. Joining Vinod is one of our esteemed partners from Mumbai, Mr. Rajesh Hatangri, who is from an organization called Think and is based out of Thane location in Mumbai. Can I just kind of ask you to actually clarify to us as to what a fund of fund is all about? Simply अभी क्या होता है कि typically हम लोग म्यूचुअल फंड्स, ETF या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? तो उसमें जैसे वैभव ने भी बताया कि दो मेजर क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं कि कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए और कब बाय और कब सेल करना चाहिए, राइट? तो वो इन्वेस्टर को या एडवाइजर्स को हमेशा फिर मार्केट को ट्रैक करना पड़ता है, डायनामिक्स को समझना पड़ता है, एंड यू हैव टू बी ऑन योर टोज एंड ट्राई एंड स्टे अहेड ऑफ द गेम. But because of our behavioral biases, many of us can't do that. So fund of fund is nothing but it's another mutual fund which invests in mutual funds and ETFs. So in the fund of fund, it invests, for example, in large cap, multi cap, flexi cap, or mid cap or thematic mutual funds. It invests in debt mutual funds. It can invest in gold ETF or international ETF. So it, as an investor, you would just invest in that one fund of fund, and the fund of fund then gives you the diversification across these asset classes. It chooses the mutual funds for you and does the rebalancing. So that's the simple concept of the fund of fund. Sir, since Vaibhavji said that I have been into practice since a long time, I have seen a trend, sir. वो trend ये था कि earlier we only had a large cap fund to invest into. Then Right. came the balanced or the hybrid funds. Then we had a little bit of thematic funds that came our way. Then we have now the asset allocation funds. So is FOF the new trend to look at? Is it here to stay or is it just a passing fad? Sure, very, very good question. Actually, if you see about till 2 years back, right, everybody wanted to invest directly into like stocks and mutual funds and now in ETFs and so on. But in the past 2 years, हमने देखा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, राइट? तो हमें जो लगता है कि अच्छा चलेगा वो नहीं चलता है और उल्टा मार्केट उल्टे डायरेक्शन में जाता है, राइट? तो अभी थोड़ा लोगों को समझने लगा है कि इफ यू कंसीडर मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, तो एसेट एलोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट कि आपको सही एसेट क्लास में होना चाहिए. मतलब अगर सपोज आप 2019 में अगर गोल्ड में नहीं होते तो आपके रिटर्न्स अच्छे नहीं होते. अगर 2020 में कोविड के बाद अगर आप डर के इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करते तो अभी आपके रिटर्न्स अच्छे नहीं आते. तो अभी इन्वेस्टर्स को समझ में आ रहा है कि पॉइंट नंबर 1 कि हमें सही एसेट क्लास में सही टाइम पे होना चाहिए, और दूसरा विद इन द एसेट क्लास हमें सही सेगमेंट में होना चाहिए. इसका मतलब है कि अगर हम पिछले साल देखें कोविड क्राइसिस के टाइम में, एक तो पहले लार्ज कैप स्टॉक्स ही ज्यादा चल रहे थे, मिड एंड स्मॉल कैप इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि उल्टा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप अच्छा चल रहा है, राइट? तो यू हैव टू नो विच सेगमेंट टू बी इन. और एक पॉइंट मैं बताता हूँ, जैसे पिछले साल कोविड टाइम पे पहले फार्मा और कंजम्पशन वो थीम्स वो सेक्टर्स चल रहे थे, राइट? फिर बाद में हमने देखा कि आईटी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर चलने लगे. तो अगर आप इन थीमेटिक्स या सेक्टर्स में अगर इन्वेस्ट नहीं आपने किया तो आपके रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं आएंगे, राइट? तो ये सब अभी इन्वेस्टर्स के ध्यान में आ रहा है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टिंग इन लेट्स से लार्ज कैप्स एंड देन सिटिंग एंड एक्सपेक्टिंग गुड रिटर्न्स. आपको पता होना चाहिए कि लार्ज कैप चल रहा है या मिड एंड स्मॉल कैप चल रहा है, या फार्मा और कंजम्पशन चल रहा है, या फिर बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, राइट? तो ये सब एक्चुअली एक एसेट एलोकेशन की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब आपको इक्विटी, फिक्स्ड इनकम या गोल्ड में ज्यादा एलोकेशन करना चाहिए, और विद इन एसेट क्लास आपको कौन से सेगमेंट में ज्यादा एलोकेशन करना चाहिए. तो ये अभी इन्वेस्टर्स को समझ में आ रहा है इसका इंपॉर्टेंस, और हमें अभी पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है इन्वेस्टर्स और एडवाइजर्स की तरफ से एसेट एलोकेशन फंड में. I have another set of questions which is basically targeted towards why FOF.
Sure. And partly you have answered it in your earlier queries. One is, what are the reasons, the key reasons that an investor should look at? What are the key reasons that an mutual fund distributor should be looking at, and the RIAs should be looking at having an stake in FOF? Sure. तो अगर हम अभी एक इन्वेस्टमेंट का अगर हम एक वर्कफ्लो दिमाग में देखते हैं, मतलब इन्वेस्टर्स का या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स या आरआईएस का, तो एक तो देखिए हमें सबसे पहले मार्केट को ट्रैक करना पड़ता है. वी हैव टू बी अवेयर कि ग्लोबली क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, कोविड का क्या हो रहा है, राइट? दैट इज स्टेप नंबर 1. सेकेंड इज देन गिवन द मार्केट एनवायरनमेंट हमें फिर सोचना पड़ जाए कि हमें कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए, इक्विटी में, फिक्स्ड इनकम में, गोल्ड में एंड सो ऑन. थर्ड स्टेप इज देन विद इन द एसेट क्लास इतने सारे फंड्स है, मतलब हजारों फंड्स और ईटीएफ है, उसमें से हमें फिर चूज करना पड़ता है कि किसमें हम इन्वेस्ट करें. फिर फोर्थ स्टेप हमें मार्केट को ट्रैक करके पीरियोडिक रीबैलेंसिंग करना पड़ता है, राइट? और फिफ्थ हमें टैक्स कंसिडरेशन भी दिमाग में रखना पड़ता है कि कब बाय सेल किया तो कितना टैक्स लगेगा. तो ये सब करने के बाद वी एक्सपेक्ट कि हमें रीजनेबल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिले, राइट? लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि काफी बार एज इन्वेस्टर्स वी आर सब्जेक्ट टू लॉट ऑफ बायसेस. मतलब एक तो जैसे वैभव ने बताया रीसेंसी बायस, जो अच्छा चल रहा है उसी में हमारा ध्यान ज्यादा रहता है. दूसरा रहता है कि हम हमेशा मतलब कभी हाई पॉइंट जब आता है मार्केट का तभी एक्साइट होकर इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं, और जब भी मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है तो पैनिक में सेल करते हैं. तो इंस्टेड ऑफ बाइंग लो एंड सेलिंग हाई, टिपिकली व्हाट हैपेंस इज इन्वेस्टर्स टेंड टू बाय हाई एंड सेल लो, और फिर उनका रिटर्न अच्छा नहीं होता है एंड उनकी पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा दिखती है, राइट? तो एसेंशियली इतना सब टाइम और एफर्ट अगर कोई डालता है तो उनका एक्सपेक्टेशन कर रहता है कि हमें रीजनेबल रिटर्न्स मिले, लेकिन काफी बार ऐसा होता नहीं है. तो इसीलिए फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट बिकम्स वेरी स्ट्रेस फ्री. कि इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दीज 5 स्टेप्स एंड स्टिल नॉट getting good returns, as an investor they can just invest in this one fund of fund which will do all the asset allocation, rebalancing and taking care of the tax considerations and so on, and chances will be higher that they will get a better risk adjusted return because inherently the product provides diversification which lowers the volatility. Second, it's very affordable. Like, investors can start an SIP with as low as a few hundred rupees and they will still get the underlying diversification across different asset classes and across the underlying funds. Third is the cost saving. जब भी investors कोई भी फंड या ETF बाय या सेल करते हैं तो उनको टैक्स लगता है, कैपिटल गेन्स टैक्स, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म. लेकिन फंड ऑफ फंड में जब रीबैलेंसिंग होता है तो उसका कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं होता इन्वेस्टर्स को, जब तक कि वो फंड ऑफ फंड के यूनिट्स रिडीम ना करे. तो ये भी उनके लिए काफी बेनिफिशियल हो जाता है. चौथा है कि ये फंड ऑफ फंड इज मैनेज बाय अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर, राइट? सो द चांसेस आर हायर दैट the portfolio manager will be able to generate better risk adjusted returns than the investors doing it themselves. और lastly, convenience. मतलब सिर्फ एक फंड ऑफ फंड का स्टेटमेंट आपको मॉनिटर करना है, 10 या 15 म्यूचुअल फंड्स का स्टेटमेंट आपको मॉनिटर नहीं करना है एज एन इन्वेस्टर. When we say that FOF will invest into different asset classes, does it mean that the amount of the portfolio is much bigger than the normal mutual fund scheme? नहीं, अगर हम देखते हैं तो टिपिकली जैसे हमारे एसेट एलोकेटेड फंड में वी हैव अबाउट 10 to 11 फंड्स एंड ईटीएफ्स. मतलब जैसे अभी हम एलोकेशन देखें तो अराउंड 60% ऑफ द AUM इज इन इक्विटी, अराउंड 25% इज इन फिक्स्ड इनकम एंड 15% इज इन गोल्ड. ओके, और इक्विटी में वी हैव अबाउट 8 फंड्स. सो वी हैव अ निफ्टी ETF एंड अ लार्ज कैप फंड, वी हैव अ फ्लेक्सी कैप एंड अ मल्टी कैप फंड, and we have a small cap fund, and we have thematic funds which are banking, infra, digital. Okay, and we also have an international ETF. On the fixed income side, we have a corporate bond fund and a low duration fund, and for gold we have a gold ETF. So इस तरह से हमने allocation किया है. और equity में जैसे core of the portfolio is the large cap and the diversified funds, and the satellite is the small cap and the thematic funds, right? So this is how the allocation is. Now if from an investor's point of view, I think this is a ideal allocation that you get diversification across these 4 asset classes: domestic equity, international equity, fixed income and gold, and you will have about 10 to 11 underlying funds essentially. Where do we position this? And this is the typical section where I am trying to unearth the answer, the answer to the question where how can I position this particular fund in the client's portfolio. Investors जो
उसमें मैं 2 स्टेप्स में ये क्वेश्चन आंसर करता हूँ। सबसे पहले कि जैसे ये एफओएफ किसके लिए सबसे मतलब पोजीशन है, तो एक तो जैसे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए, या फिर जो इन्वेस्टर्स फिक्स्ड इनकम में अब तक इन्वेस्ट करते आए हैं, जिनको भी इक्विटी में इन्वेस्ट करना है लेकिन मार्केट वोलेटिलिटी से थोड़ा वो डर रहे हैं, उनके लिए अच्छा हो सकता है। या फिर जो इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि मार्केट के इस लेवल में हमें एंटर करना चाहिए या नहीं, उनके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी, जैसे आपने बताया, जिनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी दूसरे फंड्स है, वो अपना इंक्रीमेंटल एलोकेशन जो है वो फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं। और उसका रीजन यही मैं बताऊंगा कि आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, आप और इन्वेस्टर और उनके एडवाइजर्स एनीवेज उनको वो सब मतलब एफर्ट डालना पड़ेगा कि मार्केट को ट्रैक करे और सोचे कि कैसे हमें अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए टू गेट डिसेंट रिटर्न्स। बट इंक्रीमेंटल फ्लोज आप फंड ऑफ फंड में कर सकते हैं और उसमें आपको इनहेरेंट वो एलोकेशन मिल जाएगा, एंड ओवर टाइम यू कैन देन the component allocation to the fund of fund can then over time become a larger part of your portfolio, and in that way it will give you a better balance for the portfolio. There is this common concern, or should I say, is it a myth that the FOF usually will carry a high element of expense? Right. तो बिल्कुल ये कंसर्न रहता है, लेकिन अगर आप डेटा देखें तो जो हमारा एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड है, उस रेगुलर प्लान का एक्सपेंस इज ओनली अबाउट 1.2 to 1.3%, okay, which is not very high. And the if you see the expectation, like I mentioned, पिछले 5 साल का CAGR return is about 13 to 14%, right? Now, like I mentioned, if you from an investor's point of view or from a distributor or advisor's point of view, like I mentioned, the time and effort that you have to put in, if you compare that with the what you need to do to invest in the FOF, right, which is very less time and effort, and if you can expect even 1.5% higher return in the FOF than what you could do on your own, then it's a no-brainer, right? Because जैसे मैंने कहा, FOF का expense is only 1.2 to 1.3%. So if the FOF gives you higher return than that, than what you would have done on your own, then it's a no-brainer for you that you should invest in the FOF. So how do we actually compare it with the peers, sir? How do your schemes perform against the peers in the industry? जी बिल्कुल। अभी जैसे एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड अगर हम देखें तो इंडस्ट्री में सिर्फ अभी 4-5 फंड्स ही है, और इसलिए हम उनसे भी कंपेयर करते हैं। और जो डायनेमिक एलोकेशन मतलब बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी है, उसको हम पीयर सेट बनाते हैं। और दूसरा, हम एक बेंचमार्क जो क्रिसिल हाइब्रिड 50-50 इंडेक्स है, उसके साथ भी हम कंपैरिजन करते हैं। तो अगर हम परफॉर्मेंस देखें हमारे एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड का, और जैसे मैंने बताया पिछले अगले 3 साल या 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे, सो इट्स बिटवीन 13 to 14% रिटर्न CAGR आपको मिला है। और अगर हम इंडस्ट्री के दूसरे फंड ऑफ फंड और डायनेमिक फंड से कंपेयर करते हैं, तो भी हमारा जो एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड है वो टॉप क्वार्टाइल या सेकंड क्वार्टाइल में आता है। मतलब काफी बार तो नंबर 1 पे रहा है। अभी पिछले 1 साल तक, मतलब 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर में वो नंबर 1 या नंबर 2 पे आया है, और पिछले 3 इयर्स और 5 इयर्स में Q1 या Q2 में ही रहता है। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोविड का डाउनटर्न हुआ था, जब काफी सारे इक्विटी फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया था, काफी इन्वेस्टर्स कंसर्न हो गए थे, तभी एसेट एलोकेटर फंड ने एक्चुअली मार्जिनली पॉजिटिव रिटर्न दिया। मतलब आप सोचिए कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज वही है कि जब मार्केट अच्छा करता है तो ये फंड तो अच्छा रिटर्न देगा ही, लेकिन अगर मार्केट क्रैश करता है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट डाइवर्सिफिकेशन है, तो कोई ना कोई एसेट क्लास अच्छा कर जाता है। मगर अगर जैसे इक्विटी में करेक्शन आया तो टिपिकली कभी गोल्ड अच्छा करता है या फिर फिक्स्ड इनकम स्टेबिलिटी देता है, राइट? और इसलिए पिछले साल इस फंड ने ऑलमोस्ट मतलब फ्लैट रिटर्न्स दिया था। तो कंपेयर टू अदर फंड्स, जैसे मैं कहना चाहूंगा कि ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का राहुल द्रविड़ आप इसको कह सकते हैं कि this will stay on the wicket. You will not lose your wicket irrespective of the pitch and the bowlers. Wanted you to throw some light on the taxation part, sir. How is it being taxed? So tax, like SEBI regulation के हिसाब से all fund of funds are treated as debt taxation. So essentially 3 years में short term gains लगता है और 3 years के बाद long term gains, which is 20% with indexation benefit. So that's an important thing जो investors को समझना चाहिए. Sensex and Nifty at an all-time high,
Is it the right time to invest, sir, into these funds? राजेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 9 महीने में ऑलमोस्ट मैंने 100 से 150 ऐसे मीटिंग्स किए हैं, और हर मीटिंग में ये क्वेश्चन आता है. मतलब कोविड के बाद जब मार्केट क्रैश हुआ था, निफ्टी 7,500 पे गया था, उसके बाद 9,000 पे निफ्टी आया था, तभी भी ये क्वेश्चन आया था कि ऑलरेडी मार्केट मतलब निफ्टी 9,000 पे है, सेंसेक्स इस लेवल पे है, शुड वी इन्वेस्ट. फिर जब निफ्टी 10,000 पे गया, 11,000 पे गया, तभी भी सेम क्वेश्चन आया. फिर 12, 13, 14, 15, अभी 16,000 के पास है, तो अभी भी यही क्वेश्चन है, राइट. तो मेरा जवाब यही रहता है कि it's very difficult for anyone to time the markets. Question, taking a lead from your own question, where you asked that जब investors बोलते हैं ना इतने सारे funds हैं, मैं उसमें asset allocation कर लूँगा, why should I come into a fund? Now, if an investor comes to you with the same question, how do you convince him to come to an asset allocation fund? So one is, I think sir ने तो already answer कर ही दिया. I am taking cues from whatever he has kind of given me. Already we have some of the clients who have these funds. They are already invested. I personally have a stake in this particular fund. So it doesn't, मुझे कुछ बाहर आंसर ढूंढना नहीं पड़ता. But sir has given some pertinent points and leads for me to actually kind of give it to my clients. One is since it's auto balancing, it's a no-brainer. मुझे कुछ नहीं करना. And as sir said, if you want to invest, and जैसे मैंने आपको in one of my question itself I said, fill it, shut it, forget it. अगर आपको यही करना है and you concentrate on your core competencies, I think this is the best fund to go in for, and don't think about anything else. Sir is there to take care of it. I think we should leave it to him. So sometimes, looking at funds every time and regularly doesn't generate returns. Sometimes you just have to, keep it aside and get on with your own job and let the fund managers do theirs. Models, both for the asset allocation and for fund selection. At the same time, we follow both a quantitative process as well as a qualitative process. So I'll explain what that means. जैसे वो क्वेश्चन में ही किसी ने पॉइंट आउट किया कि मोस्ट ऑफ द बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स इन द इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल, यूज अ quantitative model. So they look at, for example, ratios like price to earnings, price to book, market cap to GDP, and so on. And based on that, the balanced advantage does a dynamic allocation between equity and debt. तो अगर आप देखिए कि आज क्योंकि मार्केट अभी, फॉर एग्जांपल, निफ्टी एट 15,800 लेवल्स, most of the valuation ratios are at very high levels, right? And because of that, most of the balanced advantage funds in the industry have reduced the equity allocation to around 40%, right? But I'd like to point out that काफी बार क्या होता है कि जैसे अभी पिछले एक साल का अर्निंग्स नॉर्मलाइज नहीं है, इसलिए प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड दिख जाता है, राइट? सो relying just on the quantitative models may not always give you the right picture. Okay, इसलिए we follow both a quantitative model as well as a qualitative process. तो starting with the asset allocation, पहले हम of course हमारा मॉडल देखते हैं जिसमें हम वो ratios देखते हैं, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक, यील्ड गैप एंड मार्केट कैप टू जीडीपी. ये वाले रेशियोज देख के पहले हमारा मॉडल हमें एक इंडिकेशन देता है. फॉर एग्जांपल दैट इक्विटी शुड बी, लेट्स से 55 to 60%, एंड फिक्स्ड इनकम एंड गोल्ड कैन बी द रिमेनिंग एलोकेशन. बट हम वहां पे नहीं रुकते हैं. फिर हम क्या करते हैं कि हमारा क्वालिटेटिव इनपुट्स भी हम देखते हैं. तो जैसे मैंने बताया कि एज एन इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट माय जॉब इज टू कवर द ग्लोबल मैक्रो, डोमेस्टिक मैक्रो, लुक एट अर्निंग्स ग्रोथ and FII flows and so on, and have the discussions with our CIOs for equity and a fixed income head, with the portfolio managers and analysts, and based on that I decide the overall allocation. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.